فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت بآواز بلند پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نان عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں سارا خاندان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں سارا خاندان دیتے ہیں۔ اور گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا ہے، مچل کر بولو، نہ بڑھا کے بولو نہ گھٹا کے بولو، بس بریلی کا سرما لگا کے بولو، یا رسول اللہ یا حسین۔ ایک بار اور طرف کر بولیے سبحان اللہ۔ گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا کہ دودھ پیتا بچہ بھی جان دیتا ہے، گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا کہ دودھ پیتا بچہ بھی جان دیتا ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں ہوگا۔ اور ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے، دنیا میں آخرت میں گر رہنا ہو چین سے، دنیا و آخرت میں گر رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے۔ عزیزان محترم، دور حاضر میں انسان کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تو پیسہ اور نمبر دو وقت۔ یہ دو چیزیں انسان ان کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان وقت خرچ کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر وقت خرچ نہیں کرو گے تو پیسہ نہیں کما نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو وقت خرچ کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، پھر پیسہ خرچ کرتا ہے وقت بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کو ارجنٹ میں یہاں سے ممبئی جانا پڑ جائے تو آپ لکھنؤ جائیں گے اور جانے کے بعد ٹکٹ لیں گے ایروپلین کا اور فوراً ممبئی پہنچ جائیں گے 2 گھنٹے کے اندر۔ لیکن اگر ٹرین سے جائیں گے 24 گھنٹے لگیں گے۔ کتنے لگیں گے؟ 24 گھنٹے لگیں گے۔ تو ادھر 24 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں اور ادھر 2 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ادھر زیادہ ٹائم خرچ ہو رہا ہے اور ادھر زیادہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ ٹرین کا ٹکٹ 1500 کا مل رہا ہے اور ایروپلین کا ٹکٹ 5000 کا مل رہا ہے، کبھی 10,000 کا مل رہا ہے، کبھی 12,000 کا مل رہا ہے۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان روپیہ کمانے کے لیے اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے اور کبھی وقت کو بچانے کے لیے روپیہ کو خرچ کر رہا ہے۔ لیکن اس جلسہ کو سجانے کے لیے ہمارے منیش بھائی نے، سعید بھائی نے، عزیز بھائی نے، اس پورے خاندان نے اور راہلا کے نوجوانوں نے نہ صرف روپیہ خرچ کیا ہے بلکہ ٹائم بھی خرچ کیا ہے، وقت بھی خرچ کیا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے، اے دنیا والوں، ہماری جان کا مالک بھی حسین ہے اور ہمارے خاندان کا مالک بھی حسین ہے، ہماری جان کا مالک بھی حسین اور ہمارے خاندان کا مالک بھی حسین۔
अब जैसी माइक है वैसी तकरीर कर रहा हूँ। माइक स्टैंडर्ड होता तो तकरीर भी बहुत ओरिजिनल होती, समझ रहे। अब माइक तो ऐसी है कि अच्छे खासे मुकर्रिर की जान निकाल ले। खैर थोड़ा झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज कुछ बदअकीदा कहते हैं माज़अल्लाह कि हुसैन तो करबला में हुकूमत के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? किसके लिए? हुकूमत के लिए। ये वो कहता है जिसका अकीदा खराब होता है, ये वो कहता है जिसके दिल में नफरत हुसैन होती है, ये वो कहता है जो दुश्मन आले नबी होता है, ये वो कहता है जिसके अकीदे से, जिसके दिल से नूर ईमान निकल जाता है। लेकिन एक सुन्नी की बोली ये होती है, एक सुन्नी की शान ये होती है, जब एक सुन्नी अपने हुसैन का मकाम बयान करता है, मकाम बयान करता है, फातिमा की शान बयान करता है, तो सिर्फ इतना नहीं कहता माज़अल्लाह जो ये बदअकीदा कहते हैं, बल्कि वो तो रज़ा की जुबान में पुकार पुकार कर कहता है, क्या बात रज़ा है उस चमनिस्तान काम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यार एक तो ये माइक बार में मेरे को सजदा कर रही है, बताओ ऐसा कैसे चलेगा? थोड़ा सा मेरे को एक कपड़ा लाओ या कोई रस्सी लाओ, इसको जरा बांध दो ताकि फरार न होगा, मेरे को छोड़ के कहीं और जाए। ऐसी गुस्ताखी हम अपनी सामने बर्दाश्त नहीं करते। बार-बार माइक बताओ। आज जो दुश्मन आले नबी है, दुश्मन हुसैन है, वो माज़अल्लाह ये कहते हैं कि करबला में हुसैन किसके लिए गए थे? हुकूमत के लिए। किसके लिए गए थे? हुकूमत के लिए। हुसैन हुकूमत के लिए गए थे। मैं कहता हूँ अरे नादान जाहिल इंसान बेवकूफ, हुसैन को हुकूमत की जरूरत क्या है? अरे हुकूमत तो मेरे हुसैन के कदमों की जूती है, हुसैन को हुकूमत की जरूरत नहीं है। अरे हुसैन की तो हुकूमत अल्लाह ने ऐसी अता की है कि हुसैन की हुकूमत आसमानियों के दिलों पर है, कि जन्नत के अंदर हुसैन की हुकूमत होगी। हुसैन हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहा है। ऐसी हुकूमत कसम खुदा की करबला में हुसैन हुकूमत पाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इस्लाम बचाने के लिए गए थे। यजीदी कैम्प में इब्ने साद भी तलवार चला रहा था। शिमर ये बेबदवक्त है, इसने मेरे हुसैन के सीने पर बैठकर खंजर चलाया था, ये भी तलवार चला रहा था, खूनी भी तलवार चला रहा था, सम्मान इब्ने अरस भी तलवार चला रहा था, और वे बड़े 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 यजीदी करबला में तलवार चला रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हुसैनी कैंप है, हुसैनी कैंप से जब अब्बास निकलते हैं तलवार चलाते हैं, अली अकबर निकलते हैं तो तलवार चलाते हैं, अली असगर निकलते हैं तो जामे शहादत नोश करते हैं, और उनके तमाम रफ़िका जाते हैं मैदान करबला में जामे शहादत नोश करते हैं, वो भी तलवार चलाते हैं। लेकिन तलवार दोनों तरफ चल रही है, यजीदी भी तलवार चला रहे हैं और हुसैनी भी तलवार चला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यजीदी तलवार इनाम पाने के लिए चला रहे हैं और हुसैनी तलवार इस्लाम बचाने के लिए चला रहे हैं। हुसैनी तलवार इस्लाम बचाने के लिए चला रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बदअकीदा क्या बताएंगे कि हुसैन की शान क्या है, हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन का रुतबा क्या है। अरे बताया तो बरेली वाले ने बताया है, बताया है तो अहमद रजा खान ने बताया है, बताया है तो आला हजरत ने बताया है, फरमाया है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन क्या है ये अगर वो समझ लेते कि हुसैन क्या है तो ऐसी घिनौनी जुबान कभी खोलते ही नहीं, जुबानों पर ताले पड़ जाते। अगर वो जान लेते कि हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन की शान क्या है, आखिर हुसैन है क्या। आप जानते हो लफ्ज़े हुसैन में कितने हरफ हैं? जानते हो आप? जो ये लफ्ज है हुसैन, क्या कितने हरफ हैं इसमें? कितने?
आपने कायदा बगदादी पढ़ा है, अलीफ बा ता सा, ये जानते हो तुम्हारी जुबान में उसे कहते हैं अलीफ बे ते से, पढ़ा है ना? तो उस एतबार से जोड़ कर देखो कितने हरफ बनते, कितने? 4, कितने? 4। हाय होती, सीने मुहमला, याए मोजमा, नूने मोजमा, 4, कितने? 4। आओ अब हुसैन की हे से पूछे, कहां से शुरू होता है? हे से हुसैन शुरू होता है, हे से। अच्छा, मेरे हुसैन से पहले दुनिया में भी किसी का नाम हुसैन नहीं रखा गया, सुभान अल्लाह। जिस तरह मेरे नबी से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया, इसी तरह हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं रखा गया। अल्लाह ने सारी दुनिया से इन नामों को छुपा कर रखा, फिर जब अपने महबूब को भेजा तो मोहम्मद की नींद के पर्दों से हसन हुसैन को निकाला है, सुभान अल्लाह। फिर ये नाम रखे गए हैं। तो हुसैन कहां से शुरू होता है? हे से। हे तुम बताओ हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? हे तू बता। तो हुसैन की हे ने जवाब दिया, हक पर चलने वाला है हुसैन, हक पर चलने वाला है हुसैन। क्या है? हक पर चलने वाला है हुसैन। हमने पूछा है सीन तू बता, तो हुसैन की सीन ने जवाब दिया था, सजदे में सर को कटाने वाला है हुसैन। हमने पूछा था हुसैन की या, तू जवाब दे के हुसैन क्या है? तो हुसैन की या ने कहा था, यादे खुदा में मस्त रहने वाला है हुसैन। और जब हमने पूछा था ऐ नून तू बता कि हुसैन क्या है, तो नून ने जवाब दिया था कि नाना की उम्मत को बचाने वाला है हुसैन, नाना की उम्मत को बचाने वाला है हुसैन। कसम खुदा की, अगर हुसैन ने अपना सर, अपनी जान करबला में कुर्बान न की होती तो ना हम और आप आज मुसलमान होते, ना नमाजों के पाबंद होते, ना ये मस्जिदें नजर आती, ना ये मुसलमानों के महल्ले नजर आते, ना ये नारे तकबीर की सदाएं लगती, ना या हुसैन की आवाजें आती। ये सब सबका है तो फातिमा के लाल का सबका है। इसीलिए किसी ने कहा था, नजर से और नजारों से खून बरसेगा, इशारा सुन दो इशारों से खून बरसेगा। अगर हुसैन के सजदे को भूल जाओगे तो मस्जिदों की मीनारों से खून बरसेगा, तो मस्जिदों की मीनारों से खून बरसेगा। आज बदअकीदा कहते हैं हुसैन का जिक्र करने से मिलता क्या? मिलता क्या? हम कहते हैं आओ मैं बताता हूँ क्या मिलता है, बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं क्या मिलता है? आओ तारीख का मुताला करते हैं। यमन में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था तैयब। क्या नाम था? तैयब। क्या नाम था? जब इसके बाप का विसाल का वक्त करीब आया तो इसको बादशाह बनाया गया। बनाने के बाद इसने आर्डर दिया कि हमारे बाबा की फौज में जितने बूढ़े सिपाही हैं सबको खारिज कर दो, सबको फौज से निकाल दो और नई भर्ती शुरू करो, नए नए जवान लड़के लेकर आओ और फौज में शामिल करो। बादशाह का हुक्म था, अमल शुरू हो गया। चंद दिनों के बाद नए लड़के भर्ती हो गए, उनकी ट्रेनिंग दे दी गई। उनको घुड़सवारी की, तीरंदाजी की, तलवारबाजी की, शिकरबानी की, हर तरह की उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। और ट्रेनिंग देने के बाद उस तमाम फौज को तैयार करके बादशाह के महल के सामने लाया गया है। बादशाह अपने कमरे में तशरीफ फरमा है। वजीर आता है और कहता है आलीजा आपकी फौज को तैयार कर दिया गया है। फौज पूरी तरह पूरी आबोताब के साथ, पूरी शान शौकत के साथ आपके महल के सामने आपके मंसूरे नजर खड़ी है, आपकी नजरों का इंतजार कर रही है। हुजूर चलिए तशरीफ लेकर चलिए, अपनी फौज को मुलाहजा फरमाइए। बादशाह तैयब अपने घर से निकला है, दरवाजे को खोला है, बाहर निकल कर आया है, अपनी फौज को देखा है, फौज के तने हुए सीनों को देखा है, उनकी चमकती हुई तलवारों को देखा है, उनके नेजों को देखा है। और नेजों को देखने के बाद अचानक बादशाह का दिल घबरा जाता है।
बादशाह जमीन पर बैठ जाता है, जमीन पर बैठने के बाद लेट जाता है और लेटने के बाद बेहोश हो जाता है। चंद लम्हात के बाद वजीर आता है, पानी लेता है, चेहरे पे डालता है, बादशाह को होश आया। वजीर कहने लगता है, हुजूर जहां तक मैं जानता हूँ तो आप भी बहादुर है, आपका बाप भी बहादुर था, आपका दादा भी बहादुर था, आपका सारा खानदान बहादुर था। हुजूर अपनी फौज को देखकर डर गए थे क्या? हुजूर अपनी फौज को देखकर डर गए थे क्या? वो बेहोश हो गए। अजीजा ने मोहतरम बादशाह तैयब का जवाब सुनो। बादशाह तैयब ने कहा था, ऐ लोगों ये मत समझना कि मैं फौज की तलवारों से डर गया था। अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपनी फौज पर फख्र होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी फौज पर फख्र नहीं हुआ था, बल्कि मुझे उस वक्त कुछ याद आ गया था। बादशाह का वजीर बोला था, हुजूर क्या याद आ गया था? तो बादशाह तैयब ने कहा था कि मेरे वजीर उस वक्त मुझे करबला का असगर याद आ गया था, सकीना के सूखे होठ याद आ गए थे, अब्बास के कटे हुए बाजू याद आ गए थे, अली अकबर की लिखी हुई जवानी याद आ गई थी, कासिम की जवानी याद आ गई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। काश मैं उस वक्त होता कि जब यजीदियों ने मेरे हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया था। काश उस वक्त मैं होता तो अपने एक सिपाही को हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर देता, और फिर भी ना बनता तो अपने आप को भी हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देता। ये मैं सोच रहा था। तकरीबन 8 साल या 9 साल और एक रवायत में 11 साल का अरसा गुजरा, उसने हुकूमत की, जिंदा रहा। 11 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया। कितने सालों बाद? 11 साल के बाद इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने के बाद बादशाह कब्र के अंदर चला गया, लोगों ने दफना दिया। कुछ ही दिनों के बाद उसके वजीर ने उसे ख्वाब में देखा, पूछा माफाल अल्लाह बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया है? तो बादशाह तैयब ने ख्वाब में जवाब दिया कि अल्लाह के फजलो करम से जन्नत बड़ी आसानी से मिल गई है। अल्लाह के फजलो करम से जन्नत बड़ी आसानी से मिल गई। वजीर बोला, हुजूर ये कैसे? बादशाहों का हिसाब तो बड़ा मुश्किल से होता है, महीनों लगते हैं हिसाब में कि किसके ऊपर कितना रुपया खर्च किया, किसे नाजायज सताया, किसके माल को लूटा, किसकी संपत्ति को हजम किया, जब्त किया। ये तमाम तरह के सवाल कब्र में होते हैं। और कब्र के अंदर कब्र की मंजिल इतनी सख्त होती है, आप इतनी जल्दी जन्नत में कैसे पहुंच गए? कौन सी वो नेकी है जो आपके काम आ गई है? वो कौन सा अमल है जिसके सबब आपको जन्नत मिल गई है? वो कौन सी नेकी है जिसके सबब अल्लाह तुमसे राजी हो गया है? अजीजान मोहतरम, बादशाह तैयब का जवाब सुनो। बादशाह तैयब ने कहा था, बात यह है कि जब तुम लोग मुझे दफन करके कब्र में तन्हा छोड़कर अपने घरों को चले आए थे, जब तक मैं जिंदा था मेरे अपने भी अपने थे, गैर भी अपने थे, पराए भी अपने थे, सब आते थे मेरी खैरियत पूछते थे। लेकिन जैसे ही मुझे कब्र में लोगों ने उतारा था, मेरे ऊपर मिट्टी डाली थी, और मिट्टी डालने के बाद ऐसे घरों को भागे थे जैसे उनका मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है। मुझे तन्हा कब्र के अंदर छोड़कर चले गए थे। कब्र के फरिश्ते कब्र में आए थे, मुझसे सवाल किया था, मुझे जैसे ही उठाना चाहा था मैंने देखा कि एक नकाबपोश कब्र में आ गया है। सुभान अल्लाह। कौन आया है? नकाबपोश आया है। जैसे ही फरिश्तों ने कहा कि मुझे उठा दे, उस नकाबपोश ने फरिश्तों का हाथ पकड़ लिया और कहा, है फरिश्तों, मेरे इस गुलाम से कुछ ना पूछना, जो पूछना है मुझसे पूछ लो, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। इसे उठाने की जरूरत नहीं है, इसे सताने की जरूरत नहीं है, इससे सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर पूछना ही चाहते हो तो हमसे पूछ लो, हम जवाब देंगे। फरिश्तों ने कहा था, सवाल इससे हो रहा है, जवाब आप क्यों दोगे? आप कौन होते हो जवाब देने वाले? इम्तिहान जब किसी का होता है, सवाल जिस बच्चे से किया जाता है वही बच्चा जवाब दिया करता है। आप कैसे जवाब दे सकते हैं? आपसे सवाल नहीं किया गया है। उस नकाबपोश ने कहा था, ऐ फरिश्ता, क्या तू मुझे जानता नहीं है? क्या मुझे पहचानता नहीं है? मैं कौन हूँ और ये कौन है? फरिश्ते ने कहा, हुजूर मैं तो नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जब इसके सवाल का जवाब आप देने आए हैं तो जरूर इससे कोई रिश्ता रहा होगा, जरूर इससे कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा, जरूर इससे कोई राबता रहा होगा।
उस नकाबपोश ने कहा था, ऐ फरिश्तों अब भी नहीं समझे मैं कौन हूँ। फरिश्तों ने कहा हम नहीं समझे। अजीजान मोहतरम बादशाह तैयब कह रहा था, ओ वजीर सुन ले, मैं हैरान और परेशान था कि ये कौन है तो मेरे सवालों का जवाब देने आया है। जिस कब्र के अंदर बेटा छोड़कर चला गया है, बाप तनहा छोड़कर चला गया है, रिश्तेदार तनहा छोड़कर चले गए हैं, खानदान वाले तनहा छोड़कर चले गए हैं, ये कौन है जो कब्र के अंदर मेरी मदद करने आ गया है। अजीजान मोहतरम जब फरिश्तों ने कहा था, वो नकाब पोश अपना नकाब तो उठा दे, चलवा दिखा दे, ताकि हम भी समझ ले, हम भी जान ले तू कौन है। अजीजान मोहतरम उस नकाब पोश ने जब ये सुना था, अपने चेहरे के नकाब को उठाया था, फरिश्तों ने जैसे ही देखा था, वो कोई और नहीं था, वो मेरे नबी का नवासा इमाम हुसैन था। वो कोई और नहीं था, कौन थे? इमाम हुसैन थे। अजीजान मोहतरम फरिश्तों ने जब हुसैन को देखा है, आए है, कहा अरे इनसे हम सवाल क्या कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी जन्नत के सरदार है। इसके जन्नत के सरदार हैं, और जब सरदार हैं जिसको चाहेंगे जन्नत अता करेंगे, जिसको चाहेंगे जन्नत अता करेंगे। फरिश्ते चले गए। बादशाह तैयब बोलता है, मैंने उस नकाबपोश के दामन को पकड़ा था और पूछा था, या ईमान ये बताओ वो कौन सी नेकी है, वो कौन सा नेक अमल है, वो कौन सा मेरा अच्छा अमल है जो आज काम आ गया है कि आप करबला को छोड़कर मेरी कब्र में चलवागर हो गए हैं, मुझे बचाने आ गए हैं, मेरी मदद तो आ गए हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, ऐ बादशाह तैयब वो दिन याद कर जिस दिन तू बादशाह बना था और तेरी फौज को सजाकर तेरे सामने लाया गया था। उस वक्त तुझे अपना धन दौलत याद नहीं आया था, अपना बाप याद नहीं आया था, अपना खानदान नहीं याद आया था। अगर याद आया था तो मेरा बेटा असगर याद आया था, सकीना की याद आई थी, अब्बास की याद आई थी। और जब तुझ पर सवाल होने लगे, हमने भी ये समझ लिया कि आज हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, और अगर आज मैं इसकी मदद को ना पहुंचा तो कयामत तक के लिए हमारी मोहब्बत को बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए शक तूने मेरे असगर को याद करके एक कतरा आंसू बहाया है। हमारा भी ये वादा है कि तो हमारी आंख के नाम पर, हमारे बेटों के नाम पर एक कतरा आंसू बहा देगा, हम उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। सही बात समझ में आ रही है ना आपके? मजा आ रहा है तो जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। अब जब बात आंसू के कतरे की आ गई तो समाप्त करते चले। रौज़तुश शोहदा के अंदर यह रवायत मौजूद है कि कयामत के मैदान में एक गुनाहगार रब की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसकी नेकियां बहुत कम है, गुनाह बहुत ज्यादा है, लिहाजा फैसला ये होता है कि इसको पकड़ कर ले जाओ जहन्नम में दाखिल कर दो। जैसे ही फरिश्ते उस गुनाहगार को सूए जहन्नम लेकर चलेंगे, अचानक रब की रहमतें आवाज देंगी, ऐ बंदे जरा इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, तेरी एक अमानत हमारे पास मौजूद है, वो अमानत लेकर जा। अजीजान मोहतरम वो गुनाहगार बंदा जाएगा, रब की बारगाह में हाजिर होगा। रब कदीर उसे एक नूर का मोती अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? नूर का मोती उसे रब कदीर अता फरमाएगा और फरमाएगा कि पूरे कयामत के मैदान में टहल, पूरे महशर के मैदान में घूम और इस मोती की कीमत का पता कर कि ये मोती कितना कीमती है और कितने रुपए में बिकेगा। सुभान अल्लाह। अब वो गुनाहगार अपने कीमती मोती को लेकर, नूरानी मोती को लेकर हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएगा। हजरत आदम उसे अपने हाथों पर लेंगे, लेने के बाद फरमाएंगे, मोती बड़ा खूबसूरत है, मोती बड़ा प्यारा है, मोती बड़ा ब्यूटीफुल है, मोती की खूबसूरती का जवाब नहीं है, लेकिन इसकी कीमत हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये
اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے پاس اس کی قیمت لگانے کا ہمارے پاس اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ گناہگار بندہ حضرت آدم سے وہ موتی لے گا، لینے کے بعد وہ موتی لے کر پہنچے گا حضرت شیش کے پاس، حضرت شیش بھی یہی جواب دیں گے۔ نوح کے پاس پہنچے گا تو حضرت نوح بھی یہی جواب دیں گے، اور حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے گا تو حضرت موسیٰ بھی یہی جواب دیں گے۔ عیسیٰ کے پاس جائے گا تو عیسیٰ بھی یہی جواب دیں گے۔ آخرکار وہ تھک ہار کر رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، عرض کرے گا اے مولا یہ تو نے کیسا قیمتی موتی دے دیا ہے کہ اس کا کوئی قیمت لگاتا ہی نہیں، اس کی قیمت کتنی ہے کوئی بتاتا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، اب رب قدیر فرمائے گا اے میرے پیارے بندے تجھے معلوم ہے یہ موتی کون سا ہے، تجھے معلوم ہے یہ موتی کیسا ہے؟ بندہ کہے گا رب قدیر ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ فرمائے گا اے بندے تو بھول سکتا ہے لیکن تیرا رب کبھی نہیں بھول سکتا، تو بھول سکتا ہے لیکن تیرا رب کبھی نہیں بھول سکتا۔ یاد کر ایک دن حسین کی محفل لگی ہوئی تھی، تو بیٹھا ہوا تھا اور ایک مولانا حسین کی شان کو بیان کر رہے تھے، ان کے مصائب کو بیان کر رہے تھے۔ حسین کے مصائب کو سن کر تیری آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، ہم نے وہ آنسو گرنے نہیں دیا ہے، نور کے برتن میں جمع کر لیا ہے۔ یہ وہی تیرا آنسو ہے جس کی اتنی زیادہ قیمت ہے کہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، اب رب قدیر فرمائے گا کہ اب یہ موتی لے کر اسی کے پاس جاؤ جس کے لیے یہ موتی نکلا تھا، سبحان، جس کے لیے یہ آنسو نکلا تھا اسی کے پاس جاؤ۔ عزیزان محترم، اب وہی بندہ جائے گا کہاں؟ امام حسین کے پاس، سبحان اللہ، امام حسین کے پاس آئے گا۔ امام حسین اس موتی کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد کہیں گے موتی بڑا پیارا ہے، موتی بڑا سندر ہے، موتی بڑا بیوٹیفل ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تیرے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں اور تجھے بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رب قدیر جب یہ سنے گا کہے گا حسین تو بھی جنت کا مالک ہے اور یہ تیرا غلام ہے، تو جہاں تو رہے گا وہاں تیرا غلام رہے گا، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام حسین کی محبت بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اگر ہمارے دل میں امام حسین کی محبت موجود ہے تو قسم خدا کی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ عزیزان محترم، بڑی خوش نصیبی ہے، ایک تو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حسین کی محفل میں، کہاں ہیں؟ حسین کی محفل میں، اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ والے کے گھر کے پاس، سبحان اللہ، شہید مرد بابا کی مزار کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ اب شہید، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، سبحان اللہ، وہ زندہ ہے۔ اب کیسے زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ علماء سے بار بار اس آیت کو سنا ہے لیکن آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، علماء سے بار بار اس کی تفسیر کو سنا ہے لیکن آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ شہید کیسے زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے۔ آؤ میں آخری بات عرض کر دوں اور اپنی آیت کا مطلب واضح کر دوں کہ شہید کس طرح زندہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہر کانپور ہے، مچھلی شہر کے اندر ایک مسجد ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، ایک مسجد ہے اور انگریزوں نے مسجد کو توڑنے کا یہ بہانہ نکالا ہے کہ شہر روڈ کے چوڑی کرن کے نام پر مسجد کو توڑ دیا جائے۔ انگریز کے سپاہی آتے ہیں، مسجد میں ایک نوٹس لگاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں ٹائم پر اس مسجد کو توڑ دیا جائے گا۔ سپاہی آ کر نوٹس لگا کر چلے گئے۔ جب شہر کے نوجوانوں کو خبر ہوئی، مسلمانوں کو خبر ہوئی، دل چلنے لگا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں، روح بے چین ہو گئی ہے۔ ارے مسجدوں کی قدر وہ کیا جانیں گے، مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو نیتاؤں کی محفل میں بیٹھنا تو پسند کرتے ہیں لیکن رب کے گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ نوجوان کیا سمجھیں گے کہ مسجد کی حقیقت کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے، جو رات کے 2-2 بجے تک واٹس ایپ اور فیس بک چلاتے نظر آتے ہیں۔
हैं। वो नौजवान क्या समझेंगे कि मस्जिद की अहमियत क्या है, जिन्होंने मस्जिदों में कभी 1 रुपया देना जाना नहीं है। लेकिन देखो वो नौजवान थे, एक तुम भी नौजवान हो, जब मस्जिद के ऊपर खतरा लाहक हुआ था, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे तो बच्चे, सब हैरान और परेशान है। अजीजान मोहतरम, आखिरकार शहर के नौजवान उठते हैं और उठने के बाद रात का वक्त हो रहा है, 9:30 से 10 का टाइम हो रहा होगा। ये नौजवान गली गली जा रहे हैं, मुसलमानों के दरवाजों को खटखटा रहे हैं, लोगों को बाहर बुला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फला दिन फला वक्त फला टाइम पर हमारी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। अंग्रेजों का फरमान आ गया है, नोटिस लगा दिया गया है, अगर मस्जिदों को बचाना है तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कसम खुदा की हम ये हरगिज नहीं देख सकते कि हम जिंदा रहे और मस्जिद शहीद हो जाए, हम जिंदा रहे मस्जिद तोड़ दी जाए। अरे हम तो पागल हो जाएंगे, हमसे ये ना देखा जाएगा। हमारी तो चाहत ये है कि पहले हम शहीद हो, बाद में मस्जिद शहीद हो। अजीजान मोहतरम, नौजवान है, चले जा रहे हैं, रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। एक दरवाजे पर दस्तक दी, बूढ़ा निकल कर बाहर आया, पूछा क्यों आए हो? नौजवानों ने कहा, ए बड़े मियाँ, तुम तो जानते हो वो मस्जिद कि जिसके लिए तुमने चंदा जमा किया था, जिस मस्जिद के लिए तुमने दौड़ भाग की थी, जिस मस्जिद के लिए झोली को फैलाकर 1-1 रुपया जमा किया था, आज उसी मस्जिद को तोड़ने का अंग्रेजों ने फरमान दे दिया है। मस्जिद के अंदर नोटिस लगा दिया गया है, फला दिन फला वक्त फला टाइम पर ये मस्जिद तोड़ दी जाएगी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए हैं। बूढ़ा कहने लगता है कि नौजवानों, तुम क्या समझोगे मस्जिद की अहमियत क्या है? न तुम्हारी जवानी इसमें लगी है, न तुम्हारा पैसा इसमें लगा है। हमने तो अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना बुढ़ापा सब कुछ मस्जिद के नाम कर रखा है। तुम क्या समझोगे? काश आज मैं जवान होता, हाथों में तलवार लेता, अंग्रेज के सिपाही होते, मेरी तलवार होती, जब तक मैं मर ना जाता कोई भी अंग्रेज कुत्ता हमारी मस्जिद को छू नहीं सकता था। अजीजान मोहतरम, बूढ़े की आंखों में आंसू है। नौजवान कहते हैं, बड़े मियाँ जोश में मत आओ, बस तुम हौसला बुलंद रखो, हमारे हौसले बढ़ाते जाओ, काम तुम्हारे बेटे करते जाएंगे। अजीजान मोहतरम, आखिरकार लोग जमा होने लगे हैं मस्जिद के अंदर। आज बूढ़ा भी मौजूद है, जवान भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है। मीटिंग हो रही है कि मस्जिद को कैसे बचाया जाए, मीटिंग हो रही है कि मस्जिद को किस तरह महफूज किया जाए। अजीजान मोहतरम, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई मशवरा दिया है, किसी ने कोई मशवरा दिया है। आखिरकार एक बूढ़ा उठता है और कहता है, सारे नौजवान खामोश हो जाए, जितने भी बूढ़े हैं वो भी खामोश हो जाए। मैं एक बात अर्ज करने लगा, उसे गौर से सुने। अजीजान मोहतरम, बूढ़ा उठा है, उठने के बाद कहने लगा है, कई लोगों, मेरा मशवरा ये है कि कल की लड़ाई में ना कोई 18 साल का जवान जाएगा, ना 15 साल का नौजवान जाएगा, ना 25 साल का कोई बेटा जाएगा, बल्कि हमारा मशवरा ये है, कल की लड़ाई में 8 साल के बच्चे जाएंगे, 6 साल के बच्चे जाएंगे, 5 साल के बच्चे जाएंगे। तो इसे ही बूढ़े ने मशवरा दिया है। लोग कहने लगते हैं, बड़ा मियाँ तुम्हारे दिमाग तो सही है ना, कहीं दिमाग के स्क्रू तो ढीले नहीं हो गए। ये 8 साल के बच्चे, ये 5 साल के बच्चे, ये 10 साल के बच्चे अंग्रेजों से कैसे मुकाबला कर सकेंगे, अंग्रेजों से कैसे लड़ सकेंगे, अंग्रेजों की गोलियों का कैसे सामना कर सकेंगे? लोग ने एतराज करना शुरू किया है, लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, मैंने जो भी कहा है बड़ा सोच और समझ कर कहा है। लोगों ने कहा, क्यों कहा है, किस लिए कहा है? तो बूढ़े ने कहा था, बात यह है कि सारी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर, कोई भी मुल्क हो, किसी भी धर्म का मुल्क हो, उसके अंदर ये कानून है कि बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं है, बच्चों के ऊपर तलवार चलाने की इजाजत नहीं है, बच्चों के ऊपर गोलियां दागने की इजाजत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर कल के दिन हम अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजेंगे, अंग्रेज सिपाही आएंगे, नन्हे नन्हे हमारे मुजाहिदों को देखेंगे, ना उनकी तलवार उठेगी, ना उनकी बंदूक चलेगी, वो लोग वापस चले जाएंगे, हमारी मस्जिद भी महफूज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा, मशवरा तो अच्छा है, अमल किया जाए। उसी मशवरे को आखिरी शक्ल दे दी गई। लोगों ने हाँ में हाँ मिला दी। रात होती है, सब अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही फजर की अजान मस्जिद का मुअज्जिन देने आया है
اور اس نے پکارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ بہت دور تک لوگوں نے سنا تھا، اس مؤذن کی سسکیوں کو سنا تھا۔ مؤذن اچانک رکنے لگا ہے، اس کی آواز رک گئی ہے۔ عزیزان محترم، آخرکار لوگ مسجد آنے لگے ہیں اور آ کر مسجد کے مؤذن سے سوال پوچھتے ہیں، اے میاں مؤذن یہ بتاؤ آج تک اس سے پہلے تمہاری اذان دیتے دیتے کبھی آواز نہیں رکی تھی، آج تمہاری آواز کیوں رک گئی ہے؟ مؤذن نے جواب دیا تھا، بات یہ ہے یہی مسجد تھی، یہی مسجد کا کمرہ تھا، یہی مسجد کی مائک تھی، اسی میں میں روزانہ اذان دیتا تھا، عصر کی اذان بھی اسی میں دیتا تھا، مغرب کی اذان بھی اسی میں دیتا تھا، عشاء کی اذان بھی اسی میں دیتا تھا۔ آنسو اس لیے آ گئے کہ پتہ نہیں کل یہ مسجد ہماری محفوظ رہے گی یا توڑ دی جائے گی، اس لیے مجھے رونا آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، فجر کی اذان ہوئی ہے، ادھر بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اٹھایا ہے، ماں نے اپنے بیٹوں کو اٹھایا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہے، چچی نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا ہے۔ اٹھانے کے بعد ان کو نہلانا شروع کیا ہے۔ بچوں نے آنکھوں میں ایک معصومانہ سوال پوچھا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں بچے، اے پیاری امی جان، اے پیاری اپی جان، اے پیاری چچی جان، اے بابا جان، ذرا ایک بات تو بتا دو۔ باپ پوچھتا ہے، بیٹے بول کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو صبح صبح، اتنا صبح سال میں 2 ہی بار نہلایا جاتا تھا، یا تو عید کے دن نہلایا جاتا تھا یا بقرعید کے دن نہلایا جاتا تھا تاکہ ہم عید کی نماز پڑھ سکیں، لیکن ابا جان ابھی عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ نہ گھر میں سویاں بنی ہے، نہ گھر میں پکوڑیاں بنی ہے، گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، آج پھر کیوں ہمیں نہلایا جا رہا ہے؟ تو تمام بہنوں نے، تمام باپوں نے، تمام ماؤں نے بس ایک ہی جواب دیا تھا، اے میرے لالو، اے اسلام کے نونہالو، جب اسلام اچھا ہوتا ہے تو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جب اسلام خطرے میں ہوتا ہے تو شہید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب اسلام اچھا ہوتا ہے تو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اسلام خطرے میں ہو تو شہید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، الغرض بچوں کو تیار کر دیا گیا ہے، ماں نے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں نے اپنی بہنوں کو، چچیوں نے اپنے بھتیجوں کو جانب مسجد روانہ کر دیا ہے۔ یہ وہی محلے کے بچے ہیں جو بات بات پر شیطانی کیا کرتے تھے، یہ وہی محلے کے بچے ہیں جو کبھی گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، کبھی چور سپاہی کھیلا کرتے تھے، لیکن آج بچے ٹوپی لگا کر اسلام کے ننھے مجاہد بن کر، اسلام کے محافظ بن کر چلے جا رہے ہیں جانب مسجد۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کھیل لیا جائے، آج کسی کے لب پر یہ نہیں ہے اور گلی ڈنڈا کھیل لے، آج کوئی بھی کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بچے مسجد کے دروازے پر پہنچے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اتنی بھیڑ ہو گئی کہ پوری مسجد بھر گئی ہے اور بچے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ بچے آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے، آواز دی کہ دروازہ کھولو، ہمیں بھی اندر لو، ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، ہمیں بھی مسجد کی حفاظت کرنی ہے۔ اندر سے بچے آواز دیتے ہیں کہ اندر جگہ باقی نہیں ہے، تم باہر رہ کر مسجد کی حفاظت کرو، ہم مسجد کے اندر رہ کر مسجد کی حفاظت کریں گے۔ عزیزان محترم، آخرکار وہ وقت ہو گیا ہے، انگریز آ گئے ہیں، سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، بندوقیں بھی ہیں، ننھے ننھے سپاہیوں کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے، سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے کہا ہے بچوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے کمزور اور نحیف جسم ہماری گولیوں کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ تمہارے جسم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے باپوں کو بلاؤ، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے بھائیوں کو بلاؤ، اپنے چچاؤں کو بلاؤ، اپنے جوان بیٹوں کو بلاؤ، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ ایک گولی چلے گی اور تمہارا زندگی سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بچوں نے جواب دیا تھا، اے کمانڈر ان چیف سن لے، تو ہمیں زندگی کا فلسفہ نہ بتا، ہم وہ ہیں، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی مسلمان لڑنے کے لیے جاتا ہے، اگر زندہ بچ کر آ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، مر جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، مر جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ ہمیں زندگی کا فلسفہ نہ بتا۔ انگریزوں نے دیکھا بچے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ ظالم، ان کو بچوں کے اوپر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نرم نرم ننھے ننھے بچے تھے،
हौसला जवान था लेकिन जिस्म तो कमजोर था, हौसला जवान था लेकिन सीना तो कमजोर था। अंग्रेजों की बंदूकें उठी है, बच्चों के सीनों पर गोलियां लगी है, बच्चे तड़प कर कोई आ करके इधर गिरा है, कोई आ करके उधर गिरा है, कोई आ करके उधर गिरा है। माँ दौड़ी कहती है मेरा बेटा चला गया, चची दौड़ी कहती है हाय मेरा भतीजा चला गया, बाप दौड़ता है कहता है हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, बहन दौड़ती है कहती है हाय मेरा भैया चला गया। अज़ीज़ान मोहतरम, बच्चों की लाशों को उठाया गया है, उन्हें नहलाया गया है, कफन दिया गया है, दफन कर दिया गया है। हर घर के अंदर मातम हो रहा है, हर घर के अंदर आंसू बहाए जा रहे हैं। आखिरकार फिर वही नौजवान खड़े होते हैं और कहते हैं लोगों कब तक रोते रहोगे, कब तक आंसू बहाते रहोगे, उठो अपने बच्चों के खून का बदला लो। किसी बूढ़े ने कहा था ऐ नौजवान तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम किससे बदला ले सकोगे? अरे ये मुल्क भी अब उनका है, ये शहर भी उनका है, मुंसिफ भी उनका है, सिपाही भी उनके हैं, जज भी उनका है। कौन फैसला करेगा, कौन इंसाफ करेगा? नौजवानों ने कहा था कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुकदमा तो कर सकते हैं, मुकदमा तो कर सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आखिरकार मुकदमा कर दिया गया। तारीख आती है, तमाम मुसलमान कोर्ट के अंदर मौजूद है, अंग्रेजों का जज बैठा हुआ है और पुकारता है और कहता है मुसलमानों ये बताओ, मैं सिर्फ दो बातें तुमसे पूछूंगा, तुम ये बताओ कि फैसला तुम्हें हमारे संविधान से चाहिए या अपने कुरान से चाहिए? तो मुसलमान बोले कि कुरान के होते हुए हमें किसी संविधान की जरूरत नहीं है, हमें फैसला कुरान से चाहिए। अब जज पूछता है कि फिर ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे जो हमारे सिपाहियों की गोलियों से मरे हैं वो मर गए हैं या कि शहीद हैं? गैर मुस्लिम भी समझते हैं कि मर गए हैं या शहीद हैं। मुसलमान कहते हैं हमारे इस्लाम में जो दीन के नाम पर मर जाता है उसे मरा हुआ नहीं कहा जाता है, बल्कि वो जिंदा होता है, उसे शहीद कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अंग्रेज जज अपना फैसला सुनाता है और कहता है मुसलमानों तुम्हारे कुरान के मुताबिक जो बच्चे मारे गए हैं वो मरे नहीं है बल्कि शहीद है, और शहीद को तुम्हारा कुरान जिंदा कह रहा है। अब चलो उसी कब्रिस्तान के अंदर जहां वो बच्चे दफन है कब्र को खोद कर देखते हैं, अगर बच्चे जिंदा निकले तो आपकी मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा, और अगर बच्चे मुर्दा निकले तो मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम मुसलमानों ने कह दिया कि ठीक है हमें मंजूर है। सुभान अल्लाह, हमारी तरह कच्चा ईमान नहीं था उनका, वो पक्के मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी थे। हमारे नौजवानों की तरह वो फेसबुक पर अपना टाइम बर्बाद नहीं किया करते थे, बल्कि जब उनका दिल बेसुकून होता था तो मस्जिद में जाकर खुदा को याद करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, नौजवान भी बोले हमें मंजूर है, बूढ़ों ने कहा हमें मंजूर है। आखिरकार एक दिन मुतय्यन कर दिया गया, तो चला है, साथ में कब्र खोदने वाला चला है, तमाम मुसलमान भी पीछे पीछे जा रहे हैं। उसी कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते हैं जिस कब्रिस्तान के अंदर बच्चों को दफन किया गया है। कब्र खोदने वाले ने जैसे ही कब्र को थोड़ा सा खोदा था, एक पटला हटाया था और कब्र खोदने वाले ने अंदर देखा था। क्या देख रहा है कि अंदर बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बातें कर रहे हैं। कब्र खोदने वाला पुकारता है अरे जज साहब इधर तो आइए, जज साहब इधर तो देखिए, अरे ये बच्चे जैसे दुनिया में बातें करते थे कब्र के अंदर भी वैसे बातें कर रहे हैं। सजाता है, कब्र के अंदर झांक कर देखता है, बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं, कोई किसी को सलाम कर रहा है, कोई किसी से मुसाफा कर रहा है, कोई किसी से गले मिल रहा है, कोई किसी से बातें कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जज ने ये देखा है और मुसलमानों ने देखा है तो उनका अकीदा और पुख्ता हो गया। सुभान अल्लाह, वहां के मुसलमानों ने कहा था कि हमने आज तक तो सिर्फ सुना था कि शहीद जिंदा है, आज हमने देख भी लिया शहीद जिंदा है। वहां के लोगों ने कहा था कि जब हमारे बच्चों का ये आलम है, हमारे बच्चे किसी वली के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे किसी सहाबी के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे किसी नबी के बच्चे नहीं है, जब हमारे नबी के बच्चों का ये आलम है तो फिर हुसैन की जिंदगी का क्या आलम होगा? तो साबित हो गया हुसैन भी जिंदा है, अली अकबर भी
بھی زندہ ہے, علی اصغر بھی زندہ ہے, اور شہید مرد بابا بھی زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جج آتا ہے, کورٹ میں بیٹھتا ہے, سارے مسلمان جمع ہیں. مسلمان کہتے ہیں جج صاحب فیصلہ سنا دو, ہمیں پتا ہے فیصلہ کیا ہوگا, لیکن اپنی زبان سے فیصلہ کر دو. جج بیٹھتا ہے کرسی پر اور بولتا ہے آج میں اس کرسی انصاف پر بیٹھ کر 2 فیصلے کروں گا. کتنے؟ 2 فیصلے کروں گا. سب سے پہلا تو فیصلہ یہ ہے کہ مسجد توڑی نہیں جائے گی. سبحان اللہ. اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ آج سے میں عیسائیت سے ناطہ توڑتا ہوں اور اسلام سے رشتہ جوڑتا ہوں. پڑھنے لگا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جنہیں مسجدوں سے محبت تھی وہ مسجدیں بچا کر چلے گئے, وہ جنہیں مسجدوں سے پیار تھا مسجدوں کو آباد کر کے چلے گئے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم آج بھی نمازی نہیں ہے, وہ لوگ نمازی بھی بن کر چلے گئے اور مسجدیں بھی بنا کر چلے گئے. آج نہ ہم سے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں نہ مسجدیں بچائی جا رہی ہے. بتاؤ یہ کس کی کمی ہے؟ کس کی کمی کمی ہے کہ نہیں؟ ہماری قوم کی کمی ہے. لوگ کہتے ہیں دین کے لیے جان دے دیں گے. ارے جو انسان 5 وقت اپنے رب کو ٹائم نہ دے سکے وہ اس رب کے دین کے لیے کیا خاک جان دے گا؟ مسلمانوں اس لیے اپنا محاسبہ کرو, نمازوں کی پابندی کرو, ایک ہو کر رہو, اتحاد کر کے رہو, اسی لیے تم دنیا میں کامیاب ہوگے. ورنہ سمجھ لو, ایک مثال دے رہا ہوں. ایک کتا ہوتا ہے نا, کتا جانتے ہو, کتے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پالتو, کون؟ پالتو. دوسرا ہوتا ہے پھالتو. 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. جو پالتو ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اور جو پھالتو ہوتا ہے اس کے گلے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے گلے میں پٹا ہے, یہ حسین کی غلامی کی نشانی ہے. اس کتے کو اگر آپ ایک ڈیلا مارے کتا ڈر کر بھاگ جائے, بھاگ جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی ڈیلا آپ اگر کسی مدو مکھی شہد کی مکھی کے چھتے پر مار کر دیکھیے آپ کو آپ کی اوقات پتہ چل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ساتھ حملہ کرتی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے ایک ہو کر رہو, اتحاد کرتے رہو, ایک ہو کر رہو, مسلمان بن کے رہو. اسی میں ہماری کامیابی, اسی میں امت کی کامیابی ہے اور بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے چند کلمات کہے, اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. واخر دعوانا السلام علیکم.